So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 11th chapter. And the name of the chapter is Lord Krishna's entrance to Dwarka. And we are reading today verse number 26. Shriyo nivaso yashyoraha panapatram mukham drasham Bahavo lokapalanam saranganam padambujam Shriyo nivaso yasyoraha panapatram mukham drisham Bahavo lokapalanam saranganam padambujam Shriyo nivaso yasyoraha panapatram mukham drisham Bahavo lokapalanam saranganam padambujam. Translation. The Lord's chest is the abode of the goddess of fortune. His moon-like face is drinking vessel for eyes, which hanker after all that is beautiful. His arms are like resting places of the administrative demigods, and his lotus feet are the refuge of pure devotees who never talk or sing of any subject except his lordship. Anybody wants to read the purport? Can I read, Prabhu? Please. There are different classes of human beings, all seeking different enjoyment from different objects. There are persons who are seeking after the favors of the goddess of fortune, and for them, the Vedic literature gives information that the Lord is always served with all reverence by thousands and thousands of goddesses of fortune at the Chintamani Dham, the transcendental abode of the Lord, where the trees are all desire trees and the buildings are made of touchstone. The Lord Govinda is engaged there in herding the Surbhi cows as his natural occupation. These goddesses of fortune can be seen automatically if we are attracted by the bodily features of the Lord. The impersonalist cannot observe such a goddesses of fortune because of their dry speculative habit. And those who are artists overtaken by the beautiful creation should better see to the beautiful face of the Lord for complete satisfaction. The face of the Lord is the embodiment of beauty. What they call beautiful nature is but his smile, and what they call the sweet songs of the birds are but the specimen of the whispering voice of the Lord. There are administrative demigods in charge of the departmental service of the cosmic management, and there are tiny administrative gods in the state service. They are always afraid of other competitors. But if they take shelter of the arms of the Lord can protect them always from the attacks of the enemies. Just give me 1 second. That's okay. A faithful servant of the Lord engaged in the service of the administration is the ideal executive head and can well protect the interests of the people in general. Other so-called administrators are symbols of the anchorism, leading to the acute distress of the people who are governed by them. The administrators can remain safely under the protection of the arms of the Lord. The essence of everything is the Supreme Lord. He is called the Saram. And those who Saram. sing Saram. He's called the Saram. And those who sing and talk about him are called Sarangas, or the pure devotees. The pure devotees are always hankering after the lotus feet of the Lord. The lotus has a kind of honey which is transcendently relished by the devotees. They are like the bees who are always after the honey. Srila Rupa Goswami, the great devotee Acharya of the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, has sung a song about this lotus honey, comparing himself to be the bee. O my Lord Krishna, I beg to offer my prayers unto you. My mind is like the bee, and it is after some honey. Kindly therefore give my bee mind a place at your lotus feet, which are the resources for all transcendental honey. I know that even big demigods like Brahma do not see the rays of the nails of the Lord, your lotus feet, even though they are engaged in deep meditation for years together. Still, O infallible one, my ambition is such, for you are very merciful to your surrendered devotees.
O Madhava, I know also that I have no genuine devotion for the service of your lotus feet. But because your lordship is unconceivably powerful, you can do what is impossible to be done. Your lotus feet can be deride even the your lotus feet can deride even the nectar of the heavenly kingdom, and therefore I am very much attracted by them. O Supreme Eternal, please therefore let my mind be fixed at your lotus feet, so that eternally I may be able to relish the taste of your transcendental service. The devotees are satisfied with being placed at the lotus feet of the Lord and have no ambition to see his all beautiful face or aspire for the protection of the strong arm of the Lord. They are humbly by nature they're humble by nature, and the Lord is always leaning towards such a humble devotees. Haribol. Hare Krishna. What a beautiful purport. That's why Srila Prabhupada, whenever he mentions all of these things, he actually is very, very careful in when he talks about the shelter of lotus feet. Because this whole thing, the whole verse is talking about Shriyo Nivaso Yasyora. Shriyo means, Shri means Lakshmi Devi, है ना? यश योरहा, यश योरहा, उरहा का मतलब, उरहा मतलब चेस्ट, है ना? उरहा मतलब होता है चेस्ट. एंड पान पात्रम मुखाम दृशम, है ना? पान पा का मतलब ड्रिंकिंग पॉट, जिसमें पान का मतलब पीने का पानी, और पात्रम मतलब पात्र, है ना? पीने का पॉट. और मुखाम दृशम, मुखाम मतलब उनका फेस, और दृशम का मतलब होता है आईज. दृशाम ना, दृशम, दृशाम. दृशम का मतलब होता है देखना, दृशाम का मतलब होता है आईज, है ना? और फिर क्या बोल रहे हैं? भावो लोका पालानाम. भाव मतलब भगवान के जो बाहु है ना, बाहु, बाहुआ मतलब हाथ उनके. लोका पालनम, लोकपालन, लोकपालन मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, यानी क्षत्रिय, है ना? एंड सारंगानाम पदाम्बुजम. सारंगानाम, सारंगा जो होते, सारंगा नाम जो है ना, ये यूज करा गया है डिवोटीज के लिए, है ना? मतलब पीपल हु आर ऑलवेज सारंगा की, जैसे भगवान की ग्लोरीज गाते रहते हैं वो लोग. दे आर ऑलवेज सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड. दे ऑलवेज लुकिंग फ्रॉम पदाम भुजाम. पदम, है ना? पदम मतलब होता है पद, पद, पद अंबुजम. पद मतलब पैर, अंबुजम मतलब लोटस फीट, है ना? अंबुजा मतलब होता है लोटस, तो अंबुजम. सो कितना अमेजिंग है. इफ यू थिंक अबाउट इट, शिला प्रभुपाद स्टार्ट्स ऑफ विद अमेजिंग थिंग. ही सेज देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. अब हम सब लोग, look, all of us, we are actually seeking certain kind of enjoyments from different objects, and that includes bhakti, है ना? अगर हम लोगों को किसी भी तरीके का enjoyment नहीं आए, तो it is very hard for us to stay back. कुछ लोग get excited by कीर्तन, कुछ लोग gets excited by क्या बोलते हैं, some people get excited by कीर्तन, some people get excited by lectures, some people Prasadam. Prashadam, yes. All of them get excited by Prashadam, and some people are excited by just discipline. You know, उनको पता है कि हमारी life disciplined हो गई है. Some people are actually in bhakti because they have they found a community. You know, they found a community जहाँ पर they can actually feel at home. So Srila Prabhupada is saying there are, everyone is trying to seek different kind of enjoyments, and there are people who are trying to only get, भगवान के पास इसलिए जाते हैं because all they want to get is Lakshmi, है ना? They don't want Narayan, they want Lakshmi only, है ना? So who was the person who is very prominent, who want Lakshmi but did not wanted to do anything with Narayan? Ravana, है ना? So there are some people who just want goddess of fortune, है ना? तो और वो इसीलिए वो वेद पढ़ते हैं, क्योंकि वेद, अरे वेद क्या है? वेद में ये लिखा है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है. क्योंकि जो वेद हैं, वेद जब लिखे थे व्यासदेव जी ने, उसमें क्या क्या था वेदों में? सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनके बारे में लिखा था, ठीक है? और उसमें जो अर्थ वाला पार्ट है, इकोनॉमिक्स, है ना,
वो उसमें जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो कहते हैं अरे वेदों में लिखा है भाई, हम तो इसीलिए पैसे के पीछे भाग रहे हैं, है ना। सो दे आर लुकिंग फॉर गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, and that's why they want to follow Vedas, they want to learn Vedas, they want to do all of those things. Then उसके बाद there are another person, है ना। but यहाँ पर there is a verse in ब्रह्म संहिता जहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि देर सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान के पैर दबाने के लिए उत्साहित रहती हैं। कितनी? सहस्त्र, नॉट वन, सहस्त्र, है ना। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं हम लोग वो उसको कहते हैं चिंतामणि धाम। तो पीपल वांट टू गेट दैट चिंतामणि धाम। मतलब उस चिंतामणि धाम का क्या मतलब होता है? चिंतामणि मतलब आपको जो चाहिए मिल जाएगा, है ना, जो है ना वो मिल जाएगा उसको। फिर लेकिन देर आर सम पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन भगवान की शोहरत, भगवान का पैसे। कई लोगों को क्या इंटरेस्ट होता है? भगवान की ब्यूटी पे। दे जस्ट वॉन्ट टू सी हिज ब्यूटिफुल फेस, एंड व्हेन दे सी हिज ब्यूटिफुल फेस they become so purified that they are not even interested in Lakshmi, because Lord is so beautiful that they are not interested in Lakshmi at all. तो जैसे उनके साथ हुआ ना, क्या बोलते हैं, ध्रुव महाराज when he was क्या बोलते हैं ऑस्टेरिटीज कर रहे थे, उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था अपने ग्रैंडफादर से भी बड़ा, ब्रह्मा से भी बड़ा उनका अपना वो चाहिए था, प्लैनेट, बिकॉज उनकी इंसल्ट हो गई थी। सो व्हेन ही सॉ द लॉर्ड, जब लॉर्ड सामने आए, एज सुन एज ही सॉ द लॉर्ड्स फेस, ही फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग। वो भूल गया कि वो किस लिए आया यहाँ पर। एंड देन ही वांटेड टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड, सो इतना फ्लैबरगास्टेड था वो कि ही कुडंट इवन स्पीक। तो भगवान ने उसके सिर पे, उनके सिर पे अपना शंख टच करा, है ना, एकदम से। एंड देन ही स्टार्टेड सेइंग दिस अमेजिंग प्रेयर्स, ध्रुव महाराज's prayers, which we will read in Bhagavatam. I think it's in fourth canto, I think, है ना। And then it's beautiful, and then he says amazing, and then one of the verses which is one of the most famous verses is कि भगवान, I was looking for broken pieces of glass. आपको देखने के बाद मुझे पता चला what I was looking for. What was he looking for? He was looking for the planet bigger than Brahmaji. But when he got to see the Lord, he was saying, whatever I was praying for, now I feel like that was broken pieces of glass. नहीं चाहिए मुझे कुछ। मतलब भगवान ब्रह्मा के प्लेनेट से भी बड़ा कोई चीज उसको मिल रही है, और उसको वो क्या लग रही है? broken pieces of glass. Glass भी नहीं, broken pieces of glass. So this is the beauty of, like, when someone is attracted to the lotus face of the Lord, what happens is you get purified just by looking at the lotus face of the Lord. तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ जो पूरा पर्पोर्ट है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है द अल्योरमेंट ऑफ द लॉर्ड्स ब्यूटी, है ना। भगवान की जो ब्यूटी है, हिज मून लाइक फेस इज लाइक ड्रिंकिंग वेसल फॉर आईज विच हैंकर आफ्टर ब्यूटी, है ना। कहते हैं इमेजिन, वो जो भगवान का जो फेस है, वो हमारी आंखों के थ्रू हमारी जो सोल की जो प्यास है वो बुझाता है। लेकिन जो भगवान की ब्यूटी में खो जाता है, सारे मटीरियल इल्यूजन, सारे के सारी चीजें सब अपने आप खत्म हो जाता है, बिकॉज ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गिविंग आर सोल एंजाइटी। लेकिन जब भगवान की ब्यूटी को कोई पीता है, देन व्हाट हैपेंस, दैट्स ही गेट्स अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, है ना। तो बृहद भागवत अमृता है जिसमें ना गोप कुमार थे। गोप कुमार ने ना, ही एक्चुअली वांटेड टू गो ऑल द वे टू गोलोक वृंदावन, है ना। सो ही वेंट ऑल द वे टू गोलोक वृंदावन। लेकिन जैसे ही उसने देखा, भगवान को देखा गोप कुमार ने, ही फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग। जितनी भी ऑस्टेरिटीज उसने अपनी जिंदगी में करी थी सब भूल गया, बिकॉज
एक, इट इज सेड, वन ग्लैंस ऑफ द लॉर्ड स्माइल इज वर्थ मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ ऑस्टेरिटी, है ना। अब इतनी ब्यूटीफुल भगवान को बताया गया है कि इट्स इररेजिस्टिबल, लेकिन फिर भी जो डिवोटीज होते हैं उनको चाहिए ही नहीं होता ये। क्यों? क्योंकि दे ओनली वांट टू टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट। अब नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लाइक भगवान, तीन चीज हो गई, भगवान की ब्यूटी, भगवान की चेस्ट पे जो वो है गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून वो है, और उस लास्ट है लोटस फीट। ना इन तीनों में से कुछ लोग भगवान की ब्यूटी पे जाते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी के चक्कर में रहते हैं, और सिर्फ डिवोटीज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चरणों के चक्कर में रहते हैं। अब कोई बोलेगा कि व्हाई इज इट, कि भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम, क्या है उन लोग, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? कोई बता सकता है? कैन एनीवन से टेल मी व्हाई जो भक्त होते हैं वो सिर्फ फीट के चक्कर में क्यों रहते हैं? व्हाई इज फीट ऑन मोर मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम? व्हाई इज इट मोर इम्पोर्टेंट देन फेस और हिज चेस्ट? चेस्ट तो समझ में आता है, ठीक है ना, लक्ष्मी देवी हैं तो कोई बात नहीं। फेस, फेस क्यों नहीं? भगवान के फेस से ज्यादा उनको लोटस फीट क्यों पसंद आता है? सेवा के लिए प्रभु। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि फीट का क्या मतलब होता है? चरण, चरण का क्या मतलब होता है? चरना। दो होता है, एक तो होता है सेवा, और दूसरा उसका मतलब होता है सरेंडर। क्योंकि यस। कोई भी डिवोटीज ले लो, सब डिवोटी लो, नॉन डिवोटी लो, उनमें डिफरेंस क्या होता है? एक डिवोटी कितना अच्छा डिवोटी है वो किस पे डिपेंड करता है, कि आपने किस लेवल का भगवान को सरेंडर कर रखा है। और लोटस फीट होता है, उससे हमें लोटस फीट एज द एपिटोम ऑफ सरेंडर, है ना। सो लोटस फीट के बारे में कहा जाता है, एक तो ह्यूमिलिटी होती है, क्योंकि ह्यूमिलिटी फीट का मतलब होता है कि हम लोग ना आपके चरण पखारना चाहते हैं। क्योंकि जो क्या होता है, एज सुन एज वी सी भगवान का फेस, चलो हमने लक्ष्मी देखी तो हम भगवान की सेवा भूल जाएंगे, भगवान का फेस देखा हम इतने खो जाएंगे कि भगवान की सेवा भूल जाएंगे। तो तो डिवोटी कहते हैं हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ चरण ही देखने हैं भगवान के। लेकिन हमारी जो दर्शन पद्धति है, हमारी दर्शन पद्धति कैसे होती है? पहले भगवान के पैर से शुरू करते हैं, है ना, फिर उनके घुटने, जांघों के ऊपर, फिर उनके पेट, फिर उनकी छाती, फिर उनके हाथ, फिर उसके बाद देखा जाता है उनका फोरहेड ऊपर, उनका फोरहेड, और फिर एंड में देखा जाता है उनका फेस। उसका रीजन क्या है? हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर आपने फेस पहले देख लिया तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो भगवान का जो फेस है वो इतना ज्यादा मेस्मराइजिंग होता है। अगर हम लोग प्योरीफाइड होते हैं तब हम लोगों को ना भगवान की जो ब्यूटी नजर आती है, और फिर उसमें अगर हम फेस में खो गए तो फिर भगवान की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए डिवोटी कहता है कि मेरे को देखना ही नहीं है भगवान का फेस, मेरे को तो सिर्फ चरणों में, अपने चरणों में जगह दे दो। तो हमारा, आप लोगों ने वो देखा होगा, मैं एक सेकंड शेयर करता हूँ, लेट मी ओपन दिस अप। हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वो शेयर करता हूँ मैं आप लोगों से। उसमें जो गो, एक सेकंड, कहाँ है, व्यू योर चैनल। सो where did it go? Zone, share, okay, can you see this photo here? ये फोटो, ये भगवान की फोटो है, इसमें भगवान का फेस भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ पैर में एक एक छोटा बच्चा पैर पकड़ के बैठा हुआ है ना, लटका हुआ है। एंड दिस इज व्हाई, बिकॉज भगवान का जो फेस है वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि वी विल गो क्रेजी, हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे भगवान के। तो हम लोग क्या, भगवान के चरण पकड़ के बैठे हैं कि भगवान मुझे डिस्ट्रैक्शन भी मत दो, आप मुझे अपना चेहरे में जो आपके वो है नूर है उसका भी मेरे को नहीं चाहिए डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वो भी मेरी अगर साधना में आ रहा है तो मुझे चाहिए ही नहीं वो, है ना। इट्स अ वेरी डीप थिंग। और यही जो है शिला प्रभुपाद यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग, हाउ अमेजिंग इज दिस, इफ यू लुक एट इट, कहाँ गया वो, 20, 20,
शिला प्रभुपाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं, द लॉर्ड एंड क्या हो रहा है कि भगवान का जो फेस है, लॉर्ड गोविंदा इज एंगेज्ड इन द हर्डिंग द सुरभि काउज एज हिज नेचुरल ऑक्यूपेशन. These goddesses of fortune can be seen automatically if we are attracted by a bodily feature of the Lord. है ना, अब भगवान के बॉडीली फीचर में ही रह गए हम लोग तो खत्म है हमारा काम, है ना. जो जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है ना, वो क्या करते हैं, वो लोग ना इनको भी नहीं देख सकते, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमें ना तो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है, ना ही भगवान दिख रहा है, क्योंकि भगवान का शरीर है नहीं. अगर भगवान का शरीर है तो इसका मतलब भगवान लिमिटेड है, उनको ऐसा लगता है. लेकिन and those who are artists overtaken by beautiful creation should better see the beautiful face of the Lord for complete satisfaction. अब जो लोग वहां तक पहुंच गए हैं उनको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया है, उनको गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून से सेटिस्फेक्शन नहीं आया, वो चले जाते हैं उनके चेहरे पे. अब चेहरे पे गए तो क्या होता है, व्हाट दे कॉल ब्यूटीफुल नेचर इज बट हिज स्माइल, एंड व्हाट दे कॉल द स्वीट सॉन्ग इज द स्पेसिमेन ऑफ वर्शिपिंग विस्परिंग वॉइस ऑफ द लॉर्ड. और कहते हैं भगवान की जो वॉइस है इतनी डीप है. कहा जाता है कि अभी मैं रामनवमी की जो क्लास है उसके लिए तैयारी कर रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि भगवान जब शूर्पणखा जब आई थी राम को और उनको वो करने के लिए, तो राम ने बोला देखो मैं तो शादीशुदा हूँ, एक पत्नी व्रत है मेरा. लेकिन लक्ष्मण ने एक पत्नी व्रत नहीं रखा है और उसकी वाइफ भी नहीं है यहाँ पर, उसके पास जाओ तुम. तो वो गई उसके पास, तो लक्ष्मण ने भी उसको बोला कि नहीं देखो, मेरे पास तो समय ही नहीं है ना, मेरे पास तो कुछ समय नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने तो व्रत रख रखा है कि मैं अपने भाई की सेवा करूंगा. तुम दास की पत्नी बनोगी तो दास ही कहलाओगी, तो वो तो महाराज तो मेरे भाई है, उनके पास जाओ. तो ऐसा 2-3 बार हुआ, तो वो कहने लग गई कि शुपनगा ने बोला कि मैं ना अब ये सारा का सारा ना तुम्हारी एक पत्नी के कारण हो रहा है, मैं इसी को खा जाती हूँ. तो जो वो उसको भाग के गई, तब तक तो भगवान आराम से बात कर रहे थे. अब वो राक्षसी है, इमेजिन, वो राक्षसी है, बहुत पावरफुल राक्षसी है. अब राक्षसों को आवाज से क्या मतलब है, लेकिन जब भगवान राम ने बोला रुको, तो उनकी जो डेप्थ थी वो वॉइस, उसमें रामायण में इतना बढ़िया उसमें विवरण है उसका कि व्हेन ही रुको, जैसे उन्होंने बोला रुको, उनकी आवाज इतनी डीप थी कि शूर्पणखा जो इतनी पागल हो गई थी राम के फीचर्स को देख के कि वो उनकी वाइफ को खा जाना चाहती थी कि राम का साथ मिल जाएगा, फिर वो वहीं रुक गई. जबकि उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, उन्होंने उनके सामने भी नहीं आए, कुछ फेंका भी नहीं, सिर्फ ऐसे बोला रुको. तो उसमें वो वहां पर बताते हैं कि उनकी आवाज इतनी डीप और इतनी पावरफुल है कि आप रजिस्ट ही नहीं कर सकते, कि अगर उन्होंने कुछ बोला है इट्स वेरी हार्ड टू से नो. इतनी ज्यादा जबरदस्त भगवान की वॉइस है. तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, दे कॉल द स्वीट सॉन्ग ऑफ बर्ड्स आर बट स्पेसिमेंस ऑफ विस्परिंग वॉइस ऑफ लॉर्ड. So when he is not serious, when he is whispering, like with very gentle whispering, it's like चिड़ियों के गाना, है ना. एंड उसके बाद बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग आर्म्स, भगवान को कहते हैं ना he's got really long arms. चैतन्य महाप्रभु की जो जो आर्म्स थी वो घुटनों तक आती थी. इट इज सेड इन आवर, हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, जिसकी भुजाएं लंबी होती हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, है ना. तो उनकी लंबी लंबी, तो उनकी जो भुजाएं हैं, भगवान की भुजाओं को कैसे वो करा है, जो 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 क्षत्रिय क्लास होती है ना, क्षत्रिय क्लास या बोलो जो डेमीगॉड्स होते हैं, डेमीगॉड्स, उनको बोला गया है भगवान की भुजाएं, है ना. और यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, दे आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ अदर कॉम्पिटिटर्स. अब इस किसकी बात कर रहे हैं, अपने इंद्रा की. इंद्र को क्या है, हमेशा डर लगा रहता है ना. लेकिन अगर उनको शेल्टर लेना होता है तो भगवान की चरण की शरण नहीं लेते हैं, वो भगवान के हाथों की शरण लेते हैं. कैसे, बिकॉज व्हेन दे गो टू द लॉर्ड दे एक्चुअली फोल्ड देयर हैंड्स एंड से भगवान बचा लो, प्लीज भगवान बचा लो. वो इसलिए नहीं आते भगवान के पास कि भगवान वी लव यू, लेट मी सर्व यू, नहीं. वो आते हैं, भगवान प्लीज बचा लो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो. तो वो क्या चाहते हैं, भगवान के हाथों की, मतलब भगवान की जो स्ट्रेंथ है उसकी शेल्टर लेना चाहते हैं ना. सो अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग चीजों में अट्रैक्टेड होते हैं. कुछ लोग किस में अट्रैक्टेड हुए हैं,
भगवान की लक्ष्मी देवी पे, है ना, चेस्ट पे, कुछ लोग चेहरे पे, है ना, ब्यूटी पे, कुछ लोग भगवान की भुजाओं में, है ना, है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद और थोड़ा सा बोल रहे हैं, बिकॉज, हाँ, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। सो सार, आपको पता है ना सार का क्या मतलब होता है? सार का मतलब होता है एसेंस। सो इसलिए भगवान को क्या बोला है? सारम, है ना, सारम। भगवान को बोला है, भगवान हर चीज के एसेंस है ना। और इसीलिए जो इस एसेंस के बारे में बताता है लोगों को, उसको कहते हैं सारंगा, है ना, सारंगा, सार अंगा, है ना। तो जो सारंगा होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं प्योर डिवोटीज, क्योंकि इन प्योर डिवोटीज को ना तो भगवान के चेहरे के से डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ना गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून से डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ना ही भगवान की कोई मदद चाहिए। आपको पता है जो प्योर डिवोटीज होते हैं, दे नेवर इवन आस्क फॉर एनी हेल्प फ्रॉम गॉड। भगवान से कुछ मांगते ही नहीं। क्या कहते हैं? भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। रॉक्सी, कैन यू पुट दैट लाइट ऑन? सो व्हाट हैपेंड, एक बार हमारे जो षड गोस्वामीज थे, उन्होंने क्या करा, वो वो वहाँ गए, षड गोस्वामीज, आई थिंक, आई एम नॉट टू श्योर कौन थे, रूप गोस्वामी, हाँ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हाँ, रूप गोस्वामी थे, वन ऑफ द गोस्वामीज थे ना। तो सनातन गोस्वामी तो सबसे सीनियर थे। सो वन ऑफ द गोस्वामीज थे, वो क्या कर रहे थे, बैठ के धूप में बैठ के चैंटिंग कर रहे थे, ठीक है। धूप में बैठ के चैंटिंग कर रहे थे, तो काफी तेज धूप थी, वृंदावन की गर्मियों की धूप। तो क्या हुआ, सनातन गोस्वामी अपनी वहां से आ रहे थे, उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी थे या रूप गोस्वामी थे, दोनों में से कोई बैठ के चैंटिंग कर रहा है। फिर देखा राधा रानी खुद ही आके अपने पल्लू से उनको छाया दे रही थी, है ना। और जैसे ही उन्होंने ये देखा, यूजुअली आप सोचो राधा रानी को कोई देखेगा तो वैसे ही उसको लगेगा, अरे राधा रानी आप मिल गए, ये वो, उनको गुस्सा आया। उन्होंने बोला जाके उनको कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम भगवान से अपनी सेवा ले रहे हो, हम लोग को उनकी सेवा करनी चाहिए, तुम उनसे सेवा ले रहे हो, क्यों? तो बोले मुझे नहीं पता था वो सेवा दे रही है, मैं तो अपनी चैंटिंग कर रहा था। बोले वो इसलिए आई क्योंकि तुम धूप में बैठ के चैंटिंग कर रहे हो, बनाओ अपने लिए कुटिया। वो अपने लिए कुटिया इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि वो लोग सन्यासी थे, तो मतलब वो उन्होंने सबको छोड़ दिया, तो कुटिया नहीं चाहिए। बोले नहीं चाहिए तुम्हें, कुटिया नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें ये जो सेवा तुम ले रहे हो ये बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उनकी सेवा करनी चाहिए, तुम उनकी सेवा नहीं ले सकते, तो अपने लिए कुटीर लगाओ, है ना, कुटीर बनाओ। तो फिर उन्होंने अपने लिए फिर कुटीर बनाई, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो जो भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, उनको भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, एक्चुअली चाहिए ही नहीं कुछ। इसीलिए ना तो उनको भगवान के हाथों से कोई मतलब है, क्योंकि हाथों से भगवान क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और देंगे, है ना, वो भी नहीं चाहिए उनको, है ना। इसीलिए, और ये जो चीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, भगवान के जो डिवोटीज होते हैं, इनको भगवान से हम अपना खुद का प्रोटेक्शन भी नहीं चाहिए। ये चीज थोड़ी सी हार्ड है डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए भगवान से, है ना, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ भी करके हमें भगवान से कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन जो प्योर डिवोटी होता है, वो कहता है आश्लिष्य वा पाद रताम पिनाशतु माम अदृशनान मर्म हताम हताम करो तु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। I know no one but Krishna as my Lord, and he shall remain so, even if he handles me roughly, or by his embrace, or makes me broken-hearted by not being present before me, because he's completely free to do anything and everything, and because he is my supreme Lord and I'm his servant. So he can do anything. And this is the prayer of a devotee. Chaitanya Mahaprabhu, who as a devotee, he's praying like this in the 8th verse of Sikshashtakam. है ना, उसमें क्या है, और एक और वर्स है इसमें, शिष्टाष्टकम में एक और वर्स है, आई थिंक नंबर 1 2 3, फोर्थ वर्स। द फोर्थ वर्स इज न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये माम जन्मनी जन्मनीश्वरे भावताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। भगवान तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आई डू नॉट विश टू अक्युमुलेट वेल्थ, nor do I want beautiful women, and nor do I want any number of followers. All I want is your causeless devotional service, birth after birth. What does that mean? मोक्ष भी नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी टू डू बर्थ आफ्टर बर्थ, है ना। लेकिन क्या चाहिए बर्थ आफ्टर बर्थ मुझे? डिवोशनल सर्विस, आई वांट टू सर्व यू बर्थ आफ्टर बर्थ। और ना धनम,
क्योंकि पूरी दुनिया तीन चीजों में घूम रही है, धनम न जन्म, मतलब नेम फेम एडोरेशन, किस स्कूल में जन्म हुआ है, न धनम न जन्म न सुंदरीम, क्योंकि नो ब्यूटीफुल मैन ऑपोजिट जेंडर नहीं चाहिए, न जन्म न जन्म न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है। दैट मीन कविता मतलब आई डोंट वांट पीपल टू राइट पोएट्री अबाउट मी, दैट मीन्स आई डोंट वांट एनी फेम, है ना। व्हाट डू आई वांट, माम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहितु की, आई वांट टू टेक बर्थ अगेन एंड अगेन एंड अगेन जस्ट टू सर्व यू। सो डिफरेंस इज लॉट ऑफ पीपल वांट, आई वांट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उसके साथ मुझे भक्ति मिल जाए तो ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि नहीं, आप मेरे को तो चाहिए ही नहीं। लेकिन क्या होता है, व्हेन पीपल आर फुली सरेंडर, भगवान उनको सब कुछ दे देते हैं वैसे भी। लेकिन ये सारी चीजें हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है। और एक और चीज, श्रीमद् भागवतम में बड़ा अच्छा वर्स है एक, फॉरगॉट द वर्स बट इट इज, आई थिंक इट्स कुंती महारानी कहती है इसमें, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शीर्भिर एदमान मदह पुमान। व्हाट डज दैट मीन, जन्म यानी अच्छे कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य है ना, खूब सारा रुपया पैसा होना, श्रुति है ना, श्रुति मतलब बहुत ही इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, एंड श्री मतलब खूब पैसा, जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर एदमान मधपुमान। दैट मीन्स ये जो चारों चीजें होती हैं, ये आपकी आपकी भक्ति में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकती हैं। ऐसा नहीं बोला 100% बनती है, बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों को एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देती है जो हमारी है नहीं, रियल रियल, है ना। हम लोग क्या वो, अगर कोई कोई पर्सन बहुत सुंदर है, अपनी सुंदरता के गर्भ में अगर वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी सुंदरता ही निहार रहा है, तो उतना टाइम उसका वेस्ट हो रहा है, वो भगवान में नहीं लगा हुआ है उस वक्त। कई लोग पैसा पैसा इतना सारा है कि उसमें घमंड में लग गए, कई लोगों पर नाम इतना सारा है कि वो उसमें लग गए। इसीलिए ये चारों चीजें डिस्ट्रैक्शन होती हैं। और जबकि ये चारों चीजों के पूछे पूछे पूरी दुनिया भाग रही है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया क्यों आए थे, भक्ति करने तो नहीं आए थे, है ना, कि भाई वहां जाएंगे कीर्तन करेंगे कोई ऐसा पता ही नहीं था। हम लोग यहाँ पर इंजॉय करने आए थे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे ना। लेकिन धीरे 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 नाउ वी अंडरस्टैंड दैट द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू हैव फन, purpose of life is to serve, and in serving if we have fun, that is the fun that we are okay with, है ना। पर्पस फन नहीं है, पर्पस कुछ और है। हाँ, फन इज ए, फन जो है ना, जो फन है, अगर वो उसका साइड इफेक्ट है, देन वी हम लोग ले लेंगे उसको, वरना कुछ नहीं है, वी डोंट वांट दैट। तभी तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें कि दैट इज द डिफरेंस, है ना, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पीपल। भक्तों के साथ क्या है, दे ऑल दे वांट इज दे वांट टू हैव फुल सरेंडर। बलि महाराज ने क्या करा, बलि महाराज वाज सच एन इनक्रेडिबल डिवोटी। देखो किस खानदान में पैदा हुए हैं, उनके राक्षसों के खानदान में पैदा हुए हैं ना, इज द डिसेंडेंट ऑफ हिरण्यकशिपु, है ना, हिरण्यकशिपु के डिसेंडेंट हैं। और फिर भी ही वॉज रेडी टू गिव थर्ड, उन्होंने बोला तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं, जब वामन देव ने बोला तीसरा कदम कहाँ बोलूं, उन्होंने बोला मेरे सिर पे। व्हाट इज दैट मीन, भगवान को पता था उसके पास बचा ही कुछ नहीं है। जब दो दो कदम में उन्होंने सारे तीनों लोक नाप लिए थे, अब तीन, ये जो मटेरियल वर्ल्ड उसका था उस वक्त, है ना, बलि महाराज के अंडर था, मटेरियल वर्ल्ड तो सारा चला गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। भगवान सिर्फ उसको तीसरा पग इसलिए मांग रहे थे क्योंकि वो हम लोगों को बताना चाहते थे कि ये जो दो पग है ना, जो पूरी पूरी ब्रह्मांड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, इट डजंट रियली मैटर, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा सरेंडर, क्या चाहिए मुझे। इसीलिए उन्होंने बोला कि लुक, ये बलि महाराज क्या करता है मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो भगवान ने लीला रची। और फिर जब बलि महाराज को बोला तीसरा कदम कहाँ रखूं, तो उन्होंने बोला मेरे सिर पे। सो ये जो ये जो रिप्रेजेंटेशन है कि भगवान आप अपना पैर हमारे सिर पे रखो, व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। दैट मीन्स पहले अभी हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, भगवान के आगे प्रसाद में रख दे, भोग भोग चढ़ाते हैं उसका, ठीक, फिर प्रसाद बन जाता है, उसको खाते हैं, है ना। तो हर चीज जो हम भगवान को दे रहे हैं वो भगवान की बनाई हुई है, ठीक है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान से लेके भगवान को दे रहे हैं, वहां पर अपने आप को भगवान को दे रहे हैं। दैट इज व्हेन भगवान को क्या और कुछ भी नहीं चाहिए हमसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा अगर आके मुझे बोले कि पापा
मैंने आज मैंने नानी के घर में से, वो क्या करता है, कभी कभी अपनी नानी के घर जाता है और वो जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं पेड़ में से, उसको साफ करता है, फिर उसकी नानी उसको $2 देती है और समथिंग लाइक दैट, है ना। फिर वो जाके उसको चर्च के लिए दान करता है वो उसको, है ना। तो वो जब पैसे जमा करता है, अगर वो आए मुझे बोले पापा ये ना, ये मैंने एक हफ्ते में $5-10 कमाए, ये आप ले लो, है ना। मेरे को खुशी होगी इस बात से अगर वो देगा, लेकिन अगर उससे अब ज़्यादा खुशी क्या होगी, पापा मैं ही आपका हूँ, है ना, तो जो मेरा है वो भी आपका है, तो उसमें ज़्यादा खुशी होगी ना। तो वो खुशी भगवान को चाहिए। भगवान को हम जैसे भोग चढ़ा देते हैं, भगवान के मंदिर में जाके पैसा दान कर देते हैं, कुछ खूब सारी चीज़ें कर देते हैं भगवान को खुश करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी भगवान को तब होती है जब हमको सरेंडर करें। द प्रॉब्लम इज दिस, द वर्ड सरेंडर, हमें क्या लगता है सरेंडर का क्या मतलब है, हम हाथ खड़े कर दिए, है ना। ऐसे हाथ खड़े करने का क्या मतलब है कि नाउ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब आप जो कहोगे मैं करूंगा, वो उसका मतलब होता है सरेंडर। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हो रहा था, जब ईस्टर्न ईस्टर्न पाकिस्तान विच इज बांग्लादेश को जब उन्होंने, इंडिया ने फ्री करवाया था, 190,000 soldiers they surrendered, the highest number of soldiers that surrendered in the history of the world, है ना, एक साथ। तो हमें क्या लगता है सरेंडर का मतलब होता है कि हम हार गए, है ना। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल ऑपोजिट है। स्पिरिचुअलिटी में जो चीज हमें हरा रही है, हम उसको छोड़ रहे हैं, उसको कहते हैं सरेंडर। दैट मीन्स हमें क्या क्या चीज हरा रही है, हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है कि मैं प्रभु हूं, सब कुछ मेरा है। प्रभुत्व कहते हैं ना, मेरा, कि भाई ये जैकेट मेरा है, ये घर मेरा है, टेबल मेरा है, लैपटॉप मेरा है, बेटा मेरा है, पेरेंट्स मेरे हैं, ये मेरा 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 जो लगता है ना, इसको कहते हैं अहम। ये जो हमारा दम्भ और अहम है ना, ये हमारा सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है। तो जब हम कहते हैं हम सरेंडर कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका क्या मतलब होता है, पहले हमें लगता है मैं ही करता हूँ। अभी क्या लगता है हम लोगों को, क्या लगता है कि सपोज अगर मैं कमा रहा हूँ, अकेला कमा रहा हूँ, तो मुझे क्या लगता है जिस दिन मैं गया उस दिन सारे रुक जाएगा कमाई। लेकिन ये बात गलत है, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि मैं, भगवान को किसी को कुछ देना होता है तो भगवान देंगे ही देंगे, मैं हूं चाहे नहीं हूं। मेरे को निमित्त बना के भगवान दे रहे हैं, अगर मैं चला गया तो कोई और निमित्त बन के आएगा, उसके थ्रू मिलेगा, है ना। तो ये जो भाव है कि करता मैं हूं, ये छोड़ना है, इसको कहते हैं सरेंडर। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो प्रकृति है ना, जो प्रकृति है वो गुण और कर्म के हिसाब से, प्रकृति क्रियमाणानि, सब कुछ क्रिया जो है, सारी चीजें जो क्रिया हो रही है, कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है, माया देवी कर रही है। गुण और कर्म के हिसाब से, है ना। गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार, लेकिन क्या हो रहा है, सब कुछ कर रही है माया, है ना, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ का मतलब होता है बेवकूफ, फुलिश, अहंकारी, अहंकार मतलब प्राउड, प्राउड फुलिश पर्सन, अहंकार विमूढ़ आत्मा, उसको क्या करता अहम इति मन्यते, वो क्या मानती है, मैं हूं करता, अहम। और ये जो भाव है कि मैं करता हूं, मैं सब कर रहा हूं, जब हम सरेंडर करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, हाथ छोड़ते हैं, तो दैट मीन्स बोलते हैं भैया मैं अब कुछ नहीं कर रहा, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, जो करो आप करो, इसको कहते हैं सरेंडर। नाउ ये तो हो गया सरेंडर का मतलब इन टर्म्स ऑफ लिटरल सेंस। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सरेंडर इन आवर रियल लाइफ, व्हाट डज दैट मीन एज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सरेंडर। theoretical तो मैंने बता दिया, what is a practical application? If I am surrendered, what do I do? प्रभु When we are not attached to the results, Sorry? when we are not attached to the results, Very good, क्या that's a होगा? very good point. Yes, you're And not attached to also, this. and also, I think when we become fearless, Yes, very good. Yeah, that's a symptom, that's a symptom. So action is you give away all your results, and the symptom is that you become fearless. something But what does it mean to surrender? Like, how do we surrender? What is, when I say please surrender and you say yes I am surrendering, तो प्रभु हम सेवक हो गए, हम सेवक हो गए, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन what am I doing? Prioritizing him. Prioritizing him, yes, that is good, but what is the मतलब action? हम हमारे खुद को साइड में रख के
हाँ, जो भी कर रहे हैं सब उसके लिए कर रहे हैं, ऐसा सोचे। very good, very good, very close, very close. Keep going. And Prabhu, accepting the plan of Lord Krishna in our life, like we Seva. have Yes. to How do we accept the plan of Lord Krishna? That's very close. मतलब जो भी हो रहा है हाँ, हम उससे खुश रहें, like accepting as it is. because Yes, Prabhu. Trying to yeah, accept he has as- done it, so whatever he's done, bad, good, हाँ. because he has done it, I accept it. So Yes. Yeah. Very good. Very good. Very good. There is one more thing, one more layer. I want to peel एक और layer के एक और गहराई में जाना है थोड़ा सा और. How do I know that I'm 100% surrender? So if what do I need to do like on a daily level if I'm saying Prabhu, that हाँ. आपने बोला था ना when we always remember Krishna, never forget Krishna. Yes. How do I? Yes, that thing जो आप बोल रही हो ना exactly very Prabhu, close. accepting the favorable things for bhakti and rejecting all the ठीक है, unfavorable अच्छा things. And how do we make the decision that What? what do we accept, what do we reject? Our choice. तो है ही नहीं by प्रभु. controlling our senses, Prabhu. Yes, very good, very good. But how do I know that controlling my senses is gonna help me? Yes, ये become following the Knowledge. scriptures, knowledge. When you surrender का सिर्फ एक ही मतलब है right now practical है कि you follow the instruction of God. God. Yeah. Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam. That is the real meaning of surrender. बाकी तो हम लोग ना we can do a lot of things, we can do a lot of debate कि कौन surrendered है कौन नहीं है, but the degree of surrender is how much you are actually following the instructions of Guru and Gauranga. Problem क्या है? पहली चीज तो lot of people they don't even read. उनको पता ही नहीं है भगवान को क्या चाहिए. तो how can you follow the instruction of Lord when you have not read read when you haven't read? ठीक है, पहली चीज. So और दूसरा कैटेगरी आता है where people read but they don't even make connection with भगवान क्या बोल रहे हैं. भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते. भगवान कह रहे हैं मैं सब जगह हूं, मेरे से ही सब कुछ निकल रहा है. इति मत्वा भजन्ते वाम भूदा भाव समन्विता. जो मुझे इस भाव से पूजता है वही समझदार है. अब भगवान ने ऐसा बोल दिया तो हमें लगता है अच्छा हाँ भगवान सब जगह है. ओके भगवान आपकी जय आपकी जय आपकी जय. दैट्स नॉट सरेंडर. Surrender is when you actually start living your life exactly what Krishna wants. You become what Krishna wants, you become what your Guru wants. You become the puppet in the hand of the Lord on a daily basis. Or kaise puppet? Kaise? You read the scriptures very scrutinizingly and then you follow the scriptures on a daily basis. That is when we call it that we are surrendering, and that is called सरेंडरिंग टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. कई बार लोगों को लगता है कि यार मैं जाऊंगा भगवान कृष्ण की जो वो है विग्रह है उनमें मैं अपना सिर रख दूंगा, देन आई एम सरेंडरिंग टू द लॉर्ड. दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरेंडर. रियल सरेंडर इज व्हेन यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा. Yeah. यू फॉलो ऑन ए डेली बेसिस. भगवान ने तभी तो हम करेंगे जैसे आप बोले थे ना माता जी, डू व्हाट इज फेवरेबल एंड डोंट डू व्हाट इज नॉट फेवरेबल. ये जो हम करते हैं दैट इज एक्चुअली सरेंडर. बट व्हाई? बिकॉज कृष्णा बोल रहे हैं हम उनको फॉलो करेंगे. दैट इज कॉल्ड सरेंडर. एंड फॉर एग्जाम्पल रीडिंग स्क्रिप्चर इज अ सिम्टम ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स विल लीड टू सरेंडर. अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा भगवान को क्या चाहिए, है ना. बिल्कुल. पता नहीं चलेगा तो आप क्या करोगे, है ना. हम्म. इसीलिए शिला प्रभुपाद बड़ी, देखो वर्स 3 लाइन का 4 लाइन का वर्स है, लेकिन शिला प्रभुपाद कहाँ कहाँ घुमा घुमा के लेके गए. उन्होंने बोला भैया ये सारी चीजें इवन द लोटस फेस ऑफ कृष्णा डिवोटीज को नहीं चाहिए. डिवोटीज को सिर्फ चरण चाहिए. चरण. चरण इसलिए चाहिए क्योंकि एवरीथिंग एल्स एनीथिंग दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग फॉर माय सर्विस मुझे चाहिए ही नहीं. पता है अदर डे मैं जन्माष्टमी में क्या हुआ. जन्माष्टमी इज ऑब्वियसली लोग सुबह मंगला जाते हैं, दर्शन करते हैं, फिर रात के दर्शन के लिए लोग की लाइन लगती है, 2-2 घंटे लोग लाइन में लगे रहते हैं. जब मैं पहली बार गया किचन में था तो किचन में 12 बजने वाले थे. तो मैंने लोगों को बोला कि अच्छा दर्शन करने हैं. बोले यार आज तो दर्शन नहीं हो पाएंगे. मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि लाइन बहुत है. मैंने कहा बट हम तो किचन में लगे हुए सुबह से, हमें तो दर्शन करने देंगे. बोले फिर उन्होंने बताया दिस इज नॉट द भाव. आप यहाँ पर दर्शन करने आए हो कि सेवा करने आए हो?
मैंने कहा दोनों। बोले हमारे में सेवा ज्यादा ऊपर है दर्शन से। तो मैंने कहा क्यों? बोले अभी तुम दर्शन दर्शन की बात कर रहे हो, और जब जब तुम दर्शन दर्शन की बात कर रहे हो तुम अपनी सेवा नहीं कर रहे हो, यहाँ खड़े होकर मेरे से बहस कर रहे हो, है ना। नाउ यू शुड गो एंड सर्व, क्योंकि ये हमारे लिए हाईएस्ट। तो क्या होता है कई बार लिटरल मीनिंग जो होता है सरेंडर का वो हमें समझ में नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड सरेंडर वेयर। और मैंने ये भी देखा है कि देर आर प्लेंटी ऑफ टाइम्स फेस्टिवल्स में सीनियर डिवोटीज इवन ब्रह्मचारीज दे विल नॉट स्टेप इनटू द टेंपल रूम। क्यों? क्योंकि अगर वो जाएंगे तो एक पर्सन बाहर से अंदर नहीं जा पाएगा। सो दे स्टे आउटसाइड सो समवन एल्स कैन गो टेक दर्शन, एंड दैट इज सेवा ऑफ कृष्णा एज वेल। और नंद दुलाल प्रभु हैं, वो क्या करते हैं मंदिर में, वो सबसे पीछे खड़े होते हैं, सबसे पीछे। वो क्यों खड़े होते हैं? और कई बार मैं आता हूँ, मैं भी आया, कई बार आया, तो वो मेरे को आगे लगा लेते हैं अपने। और फिर एकदम से मेरे कान में उन्होंने एक बार बोला, प्रभु भगवान देखो, आप यू आर ए डिवोटी, यू आर वेरी क्लोज टू कृष्णा, सो ही माइट बी लुकिंग एट यू एंड बिकॉज ऑफ यू ही कैन लुक एट मी, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, है ना। So I might get his glance because of you. Now this is, when you think about this, this is called surrender, because you're not interested in standing right. क्योंकि क्या होता है यूजुअली, देखा ना मंदिर में धक्का मुक्की होती है कि मेरे को आगे रहना है, मेरे को भगवान के दर्शन करने हैं। जो प्योर डिवोटीज होते हैं, जो सीनियर डिवोटीज होते हैं, देखो ऑल द वे बिहाइंड, कि लोग सब लोग आओ प्रसाद खाने में। प्रसादम, देयर हैज बीन इंस्टेंसेस का फ्यू फेस्टिवल्स में प्रसादम बचा ही नहीं, देयर वाज नो प्रसादम लेफ्ट। हम लोग और बना रहे थे प्रसादम, वो भी फिनिश हो गया। देयर वाज एक्चुअली नथिंग लेफ्ट फॉर द कुक्स एंड एवरीवन, एंड नोबडी केयर्ड, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। कि उनको बोला कि देखो कोई भी, हर किसी के हाथ में प्लेट है। फिर देन somebody came and he cooked for devotee, जो किचन के लिए काम करते हैं उनके लिए उन्होंने बनाया। बट कहने का मतलब है nobody has the idea is to serve, and that is called surrender. And this is the intention that we have to, jab when we are reading these scriptures, these are the intention we have to develop in ourselves, where we are not interested. Actually, even though we are interested in other stuff as well, we should learn from this and see what is on the other side. वरना तो हमें पता ही नहीं है। वरना पहले क्या था, बचपन से क्या देखा है, सबसे पहले भाग के मंदिर जाना है, सबसे आगे लगना है, सबसे बढ़िया दर्शन होने चाहिए। लोग आके कहते क्या बढ़िया दर्शन हुआ है, धक्का मुक्की में मैं तो निकल गया जी आगे, है ना। Now that is not bad, क्योंकि ultimately you are trying to get to who? Krishna, na? This is not bad. But higher than that is, I'm gonna enable someone else, and that is the reason why I'm telling all of you guys to make sure you pick up preaching. क्योंकि क्या होगा, what is preaching? Preaching is the way that Nandulal Prabhu is doing. कि आप आगे जाओ, आप आगे जाओ, आप आगे जाओ, आप लो भगवान की मर्जी, आप लो भगवान की मर्जी। एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ प्रीचिंग। आप लो भगवान की मर्जी, आप लो आपके लिए है भगवान की मर्जी, यू नो। एंड दिस इज द ओनली हु कैन डू दिस, ओनली डिवोटीज कैन डू दिस। क्योंकि जो भगवान की कृपा होती है ना, भगवान अपनी कृपा सिर्फ डिवोटीज के थ्रू ही देते हैं। हनुमान प्रभु चैतन्य चरितमृता की क्लास में बता रहे थे, कहते एक बार क्या हुआ, वो संडे को, सैटरडे को, वो पहले यहाँ वेस्ट में रहते थे, वेरेबी साइड में, तो वो हर सैटरडे जाते थे मंदिर सुबह, और फिर 10 से 2 उनकी टेबल होती थी, बुक टेबल पे सेवा करते थे, 2:30 से 3 बजे तक वो मंदिर साफ करते थे, उसके बाद वो प्रसाद लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने सारा कुछ कर लिया, प्रसाद फिनिश हो गया था। अब वो वहां बैठे थे, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, प्रसाद नहीं खाऊंगा, है ना, थोड़ा सा ऑस्टेरिटी हो जाएगी। चैंटिंग कर रहे थे कोर्टयार्ड में बैठ के, और उन्होंने सोचा 4 साढ़े 4 बजे जो फ्रूट्स आएंगे वो मैं खा लूंगा। एंड ही वाज सिटिंग देयर, एंड सडनली समवन फ्रॉम द किचन में कोई खाना पका रहे थे, वो समबडी केम फ्रॉम द किचन एंड कहते, हरे कृष्णा प्रभु, ये somebody left a plate full of prasadam in the kitchen. If you haven't, would you like to have this? अब now हनुमान प्रभु took the plate and he literally started crying कि देखो कृष्णा, this is a reciprocation, direct। वरना किचन में प्लेट पड़ी है, पहली बात तो वो बंदा बोलेगा, जब मतलब खाना किसको दूं मैं खाना, या तो वो मैं ले जाऊंगा, घर ले जाऊंगा जब जाऊंगा, है ना, ये भी सोच सकता था जो बंदा वहां काम करता, या फिर वो ये सोच सकता था कि यार किसी की पड़ी है, कोई आ रहा होगा लेने,
But Krishna in his heart said, no, take this plate, go outside because there is my devotee sitting there. He's hungry. And he was crying not because he got food, he was crying because of the reciprocation of the Lord. And ये जो छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, भगवान जो हमें दिखाता है छोटा छोटा सा, ये क्या हम लोगों को हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं. अरे इसीलिए थोड़ी सी हमारी जो भक्ति होती है ना थोड़ी सी शिथिल हो जाती है. और उसी लिए कहते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज, भक्ति का मतलब ये नहीं कि आई गेट एवरीथिंग. भक्ति का मतलब होता है instead of what's in it for me, we should change that to how can I serve. Or two different terms. What's in it for me, how can I serve. What's in it for me, how can I serve. जो constant हमारे दिमाग में जो चल रहा है ना, what's in it for, what's in it for me, what's in it for me, अगर आपको उससे छुटकारा पाना है, आपसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं until and unless you start focusing on how can I serve, how can I serve, how can I serve. जैसे जैसे आप how can I serve करते रहोगे, जो दूसरा पार्ट है ना what's in it for me, वो धीरे धीरे डिसअपीयर होता जाएगा. परम दृष्टवा निवर्तते. जब हायर टेस्ट आ जाता है तो लोअर टेस्ट अपने आप निकल जाता है. जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था ना, अगर एक इस ग्लास, ये ग्लास पानी का ग्लास है, इसमें अगर मैं एक बूंद इंक डाल दूं तो पानी ब्लू हो जाएगा. इसको ब्लू पानी को साफ करने के दो तरीके हैं. एक तो मैं इसको पानी को पूरा फेंक दूं, दूसरा भरूं, और दूसरा नल चला के छोड़ दूं. थोड़ी देर में जो साफ पानी आएगा गंदे पानी को निकाल देगा. एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ इसमें साफ पानी बचेगा. That's called param drishtva nivartate. And bhakti, Krishna consciousness is exactly like this. Krishna consciousness is not कि भाई आप सब कुछ छोड़ दो and then you start Krishna consciousness. No, you start Krishna consciousness. अपने आप जो भी आपकी चीज, जो भी conducive नहीं है आपकी भक्ति के लिए, वो धीरे धीरे अपने आप निकल जाएगा. बशर्ते we do surrender. Surrender का मतलब होता है follow scriptures and guru. And what are Acharya saying? Chant Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. When we do this chanting, धीरे धीरे हमारा purification होएगा, and then one day we will be able to do and understand the surrender better, and we will be able to surrender to the Lord the way He wants us to surrender. Okay. I'm so sorry, it's already 8 o'clock. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. Sorry, मैं 45 पे finish करना चाहता था because I wanted to ask you guys if you have any questions, any comments. Please go ahead. Anybody has any questions? Any comments? यही जो प्रभु आपने बोला ना अभी, वो अच्छा लगा कि वो क्या कहते हैं, सेवा. जैसे अब मैं नहीं जा पाती मंगला आरती में, मंदिर नहीं जा पा रही बहुत, पर फिर मतलब मन में रहता कि चलो भगवान है मेरे पास घर में, वो भी भगवान है. आप अपने हस्बैंड की सेवा कर रहे हो, वो भगवान की सेवा है एक्चुअली, यू नो. जी, वो भी सेवा तो सेवा ही है. हाँ क्योंकि जी. आपका पहला कर्तव्य यही है कि अंकल की बिल्कुल सेवा हो, और वो जो आप कर रहे हो उससे भगवान बहुत खुश हैं. क्योंकि लेकिन आपके मन में फिर भी भाव आ रहा है ना कि मेरे को मंगला जाना है, भगवान उससे खुश हैं. और कोइंसिडेंट देखिए, मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ इनके किसी भी मतलब कुछ भी हो, छोटा सा भी अगर इस टाइप का होता है ना, कहते हैं बहुत आसान है एंडोस्कोपी, बहुत आसान, पर मैं घबराती हूँ क्योंकि 2 बार हो चुका ना रिस्क. तो आज जैसे मैं 7 बजे इनको वो देना था फर्स्ट, वो लिक्विड देते हैं, लिक्विड जे, तो जैसे देना था और उसी समय उधर कॉल आ जाती है मुझे, तो मुझे लगा भगवान की कृपा मुझे मिल गई एकदम, ऐसे ही आया उस समय. और वो भी अभी बैठे भगवान के पास ही पूजा कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. बस आप सबका आशीर्वाद, बस आप, भगवान कृष्ण आपके साथ हैं, आप चिंता ही मत करें. सारे बच्चे जो हैं ये अब पूजा कॉल करने लग गई, मुझे इसी में भी बड़ी खुशी है. वेरी गुड, वेरी गुड. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. पूजा माता जी, आपका क्वेश्चन? No, Prabhu, just one realization I wanted to share. मैं Please, अभी please इंडिया share. गई थी ना, तो मैं पुष्टि मार्ग हम लोग फॉलो करते ना, तो हाँ, जो टेम्पल में हमारे मुखिया जी जो पूजा करते हैं ना, उनको मुखिया जी बोलते. तो मैंने उनको पूछा कि भगवान की आंखें, यू नो, व्हाई कांट वी सी हिज आईज, बिकॉज श्रीनाथ जी का स्वरूप इफ यू सी ना, वो आंखें बंद है का, एक्चुअली वो बंद नहीं है. He is looking at his devotees who are at his lotus feet. Lotus feet. So he explained it. So, and I just remembered when you were saying about the feet. So true that he is always looking at his feet because his devotees are at his feet. That is it. That is it. तभी तो क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है, देयर इज, आपको पता है राधा वल्लभ में कृष्णा वल्लभ जी हैं, वो कैसे खड़े हैं, अपने पैर जो होते हैं उनके पैर, वो क्यों दिखते हैं उनके पैर? बिकॉज व्हाट ही वांट्स इज
कि जो हवा चले वो भगवान के पैरों में से छू के भक्तों के पास जाए, क्योंकि दैट्स व्हाट भक्त वांट्स। तो वो इसीलिए वो उनका जो 3 बेंडिंग फॉर्म है जो है ना, वो इसीलिए उन्होंने ले रखा है, क्योंकि उनको कुछ उसमें वो नहीं है, ही डजंट हैव एनी प्रायोरिटी और एनीथिंग लाइक दैट, उनका कुछ वो नहीं है, ही जस्ट वांट अस टू fulfill that desires that we have. I mean, as a devotee, not me. I mean, I'm talking about devotees. Devotees क्या करते हैं? That's what they want. They want कि भगवान के पैरों के नीचे से जो हवा निकल के आ रही है वो हमारे पास आए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये लो मेरा पैर, है ना? And there was a incident where the compassion of the Lord is so much that Bhrigu Muni, जब he was trying to find out who is the supreme personality of Godhead, है ना? तो भृगु मुनि ने क्या करा? he went to ब्रह्मा जी, he insulted ब्रह्मा ने उनको भगा दिया. he went to शिव जी ने उनको भगा दिया कि गुस्सा दिलाते, इंसल्ट कर रहे थे उनकी. तो शिव जी ने उनको बोला कि निकल जाओ यहाँ से, है ना, इससे पहले कि तुम और वैष्णव अपराध करो, चले जाओ यहाँ से. वो जब वहां गए, फिर विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के चेस्ट पे उन्होंने एक लात ही मार दी. कस तो बनी है यहाँ पर. हाँ, अब यहाँ पर लात मारी तो उनको लगा कि आप गुस्सा होंगे, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए विष्णु भगवान ने भृगु मुनि के, बोले आपके लगी तो नहीं, क्योंकि मेरा जो छाती है ना बड़ी कठोर है, तो प्लीज इधर आओ, मैं आपके पैर में मसाज कर देता हूँ. That's when Bhrigu Muni declares that he is the supreme personality of Godhead because nothing impacts him. Because his anger is he is not controlled by his anger, or ऐसे तो शिवजी भी he is not controlled by his anger. शिवजी is a very amazing personality, but ये जो past time था, ये शिवजी इसमें involved थे इसलिए क्योंकि शिवजी बताना चाहते थे मैं नहीं हूँ supreme personality, विष्णु is supreme personality. तो but शिवजी is not an ordinary person. ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा आ जाता है तो वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. He is a pure devotee of the Lord and he is a वैष्णवा नाम यथा शंभो. उनसे बड़ा कोई वैष्णव है नहीं शिवजी से बड़ा. तो शिवजी when he participates in these leelas, he is just portraying एक ही चीज की, यार मैं just लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे भगवान कौन है. That's it. उनको और कुछ वो नहीं चाहिए. But yes, thank you for sharing, Mataji. Really appreciate it. Thank you. और दोनों प्रभु एक दूसरे के गुणगान ही करते हैं. वो भगवान राम कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास न भावा. हर समय शिव जी जो है वो भी भगवान का ध्यान करते हैं, विष्णु का. क्योंकि हनुमान जी तो उन्हीं के अंश है ना. जी अंश अवतार. हाँ, वेरी नाइस. जी. Okay. Any other questions or comments? Okay. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्णा.